Hello, all of you. A very, very good evening. This is Nandini Hirani, and I'm going to be taking you towards a very nice vocabulary journey today. Okay, and this is definitely going to be amazingly interesting because I have coupled not just words, I have coupled a lot of images. I have used a lot of Bollywood, themes and references and memes that will make you amazingly enlightened as well as knowledgeable as well as entertained. Okay, so before proceeding with this video, before giving you any outlook, just please go and subscribe the channel so that you do not miss any notification from us. Now, moving ahead, we are here, doing vocabulary words for OMIT. Now, other management entrance test का ना एक बहुत ही simple फंडा है. वो क्या करते हैं आपसे questions, they ask you the words that have not been extraneously not used anywhere. ठीक है, वो वही words पूछते हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुना हुआ होगा बट आपको उसकी मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं पता होंगे. ठीक है, सो आवर गोल इज टू नॉट गो अबाउट हाई एंड वर्ड्स एंड लर्न देम बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. स्टूडेंट्स मुझे आगे पूछते हैं मैम वोकैबुलरी के लिए क्या करें. वोकैबुलरी के लिए पर से तुम कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज सो वाइड एंड वास्ट दैट यू एक्चुअली कैन नॉट memorize it. You cannot actually, take it just with a dictionary and start memorizing it. That is not possible. So generally what should you ideally be doing is first of all read things which already you might have gotten a lot of tips in CAT कि read करो. ठीक है, read करने के साथ साथ भी तुम्हें बहुत सारे words मिल जाते हैं. In generally also if you read A1 every day उसमें से कुछ ना कुछ नए words तो तुम्हें मिल ही जाएंगे. And secondly watch the videos that enlighten you from the past year papers of the words from the past year papers. वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है. तीसरा है solve questions of vocabulary. ठीक है, after this video, once you watch this video you might be also looking at the description box. Description में मैं एक बहुत अच्छा vocabulary का PDF डालने वाली हूँ. ठीक है, vocabulary के questions है उसमें कुछ 70-80 questions हैं. It's going to be a wonderful question, PDF. It includes all the words that I could not cover in this slide because of the time, because of the volume and all of that. So make sure you solve those questions once you watch this video, because this video is also going to take you through a lot of good things and a lot of good words. And I guarantee somewhere around 200 words, in this next 1.5 hour. So that's what the goal is today, to learn but not be bored of vocab, because that is the first thing that someone tells me when I start a class of vocab. It's just the same. I'm not going to be remembering all these words, which is fair. I understand that. लेकिन किस तरीके से करना है, कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से हम आज शुरू करते हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाते हैं इस पे. ठीक है, परफेक्टली. चलिए, लेट मी स्टार्ट. Yes. So yes, you might have seen the what do you say? I'll just share my screen with you quickly. ठीक है, चलिए. So you might have seen my words here. ठीक है, आपने मेरे कुछ चीजें might have heard and seen. So the idea is vocabulary it includes a lot of fruit words. It includes a lot of synonyms, antonyms. It includes a lot of fill in the blanks based on such synonyms, antonyms and word usages. ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि we cover one word, we cover some closer words to it, some similar words to it, and the words that are generally the opposites of it. ठीक है, so let's right away jump towards them. Yeah, this is something that I was explaining to my students and I've already mentioned it. Okay, so the first word we have is cacophony, right? Cacophony क्या होता है ना? Cacophony is something which means bad. अब caco का मतलब ही होता है bad. This comes from a very Latin origin that cacos means bads and phony. So phony से पूरा एक branch of linguistic भी आता है which is phonetics. फोनेटिक्स का मतलब होता है साउंड्स. तो बच्चों को बचपन में आई गेस मेरे टाइम पे ये सब नहीं होता था, बट आज के जमाने में बच्चों को फोनेटिक्स सिखाया जाता है. फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? साउंड्स. लेट्स से क है तो वो कैसा साउंड करेगा, के ए मतलब क साउंड करता है, ख है तो वो के एच ए ख का साउंड होता है. तो ये साउंड्स जो है उसको हम फोनीम्स या फोनेटिक्स का ब्रांच बोलते हैं. सो फोनी वर्ड से ये सारे वर्ड्स निकल के आते हैं. और फोनी या फोन, अगेन फोन. सो फोन ऑल्सो इज अ वर्ड दैट हैज द सेम ओरिजिन व्हिच मींस साउंड. ठीक है, तो इस तरीके से दैट हैज बीन टेकन अहेड. नाउ
सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स ऑफ कोर्स बैड है, तो बैड के तो वर्ड्स भी बैड होंगे। तो देखो हमेशा ना वर्ड का टोन भी पता चलना चाहिए। जैसे हमें टोन्स तुमने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे कैट के लिए, है ना? असर्बिक पढ़ा होगा, कॉस्टिक पढ़ा होगा, कॉमिसरेटिंग पढ़ा होगा, सैंग्विन पढ़ा होगा, अपबीट पढ़ा होगा, बहुत सारे टोन्स पढ़े होंगे, राइट? अब उन टोन्स में से तुम समझते क्या हो? तुम उस ऑथर के ऑथर का पर्सपेक्टिव या ऑथर के आइडियाज का टोन समझते हो। हमेशा ये समझो कि तुम वर्ड्स का टोन समझ के भी उनके आंसर्स निकाल सकते हो एलिमिनेशन से। लेट्स से मेरे पास वर्ड है केकैफनी। अब मेरे को चलो फनी का मतलब नहीं पता और वर्ड का मतलब भी नहीं पता। मुझे कहीं ना कहीं से इतना पता है कि केको का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, या तो मतलब बैड। मुझे इस वर्ड का मतलब ना पता होते हुए भी मैं उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे कि फाइंड द सिमिलर वर्ड टू केकैफनी। अब अगर पास में कोई पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेट्स से जुबिलियंट, ठीक है, या तो जुबिलियंट या तो जॉवियल, कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे आई विल बी वेरी 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 क्लियर एंड वेरी शार्प दैट ये तो पॉजिटिव मीनिंग्स है, तो ये तो इसके सिमिलर वर्ड्स हो नहीं सकते, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन के लिए उस वर्ड का टोन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोन मतलब वो क्या इंप्लाई करता है। लेट्स से जेलस, जेलस एज वर्ड ही नेगेटिव है, एनवी एज अ वर्ड ही नेगेटिव है, ठीक है। एंड मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेलस एंड एनवी। मैं लास्ट में डिफरेंस बताऊंगी बिल्कुल, लेकिन अभी अगर आप इसको देख रहे हैं तो तुरंत ही जेलस वर्सेस एनवी, व्हाट इज विच इज बैड, विच इज अ वर्स एंड ऑफ द टू, ठीक है। चलो अब आता है एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ कोर्स मींस ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स दैट यू हैव बीन डूइंग। सो अच्छे बुरे साउंड का ऑपोजिट क्या हो सकता है? अच्छा साउंड, व्हिच मींस क्या क्या कैकोफनी का क्या होगा? सिम्फनी। सिम्फनी मींस अ वेरी पीसफुल, वेरी नाइस वॉइस। देन यू हैव क्वाइट्यूड, यू हैव ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल आल्सो मींस वेरी नाइस। इससे वर्ड निकलता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर जो आपको थेरेपीज वगैरह में दिया जाता है, या इन जनरल आल्सो यू हैव ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब समथिंग और any substance that soothes your brain, इससे वर्ड निकलता है ट्रैंक्विल एंड ट्रैंक्विलाइजर। फाइन। सिमिलर वर्ड्स मैंने डाले हैं कैकोग्राफी। कैकोग्राफी मतलब बहुत ही, ग्राफियन मतलब होता है राइट, है ना? और कैको मतलब बैड, बैड हैंड राइटिंग। केकेरोमीटर, केकेरोमीटर मतलब एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द बैड क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है। केकाडमिन, केकाडमिन मतलब some evil bad spirit in a human being. कैकोडेंटल मतलब some bad teeth. कैकोडर्मिया मतलब bad skin. So कैको मतलब बैड हो गया, मेरे को उसके आगे कोई भी वर्ड लगा दूंगी उस वर्ड के वो बैड हो जाएगा, मतलब दैट सिंपल, ठीक है। आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अब आप पूरे इस पूरे के पूरे लेक्चर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे देखने वाले हैं, दैट्स अ गारंटी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, जिनको पता है वेरी गुड, आप 2x करके आगे वाले वर्ड पे जा सकते हैं। जिनको नहीं पता है प्लीज रुक के सुन लीजिए, बहुत बेसिक से समझाने वाली हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप वो हर आपकी स्पीच का हिस्सा जो आप रेगुलर या एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। सो इन 8 चीजों के अलावा आपकी इंग्लिश बनी नहीं सकती, दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच में बेसिकली इतनी चीजें होती हैं। नाउन होता है, ठीक है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर एडजेक्टिव होता है ना, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं पार्ट्स ऑफ। इंटरजेक्शन भी होता है, बट इंटरजेक्शन का इतना यूज नहीं है, बट ठीक है वो भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो इतनी चीजें होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब ये समझो हमको ये क्यों जरूरी है। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, तुम्हें जब वोकैबुलरी की फिल इन द ब्लैंक्स आती है, सबसे डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, यार मैम उसको वर्ड्स ही नहीं आते, कैसे फिट करें। मैं बताऊं, अगर तुम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से सॉल्व करना ट्राई करोगे, कभी भी वर्ड्स गलत नहीं होंगे। हाउ डू यू डू दैट? लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो उसकी मतलब समझते हैं होते क्या है। सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स अ नेम, एनीथिंग। अगर मेरे हाथ में बॉटल है तो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो नाउन। माई हेयर नाउन, वॉच नाउन, पेन नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाजू में मैं लिख देती हूँ नेमिंग वर्ड्स, राइट। तो ये भी कर सकते हो। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? बार बार तो नहीं बोलोगे नंदिनी इज अ गुड पर्सन, नंदिनी स्पीक्स वेल, नंदिनी टीचेस वेल, यू नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन। व्हाट विल यू यूज? You will use a pronoun instead of that name. What is a pronoun? He, she, it, they, we, you. ये सारे क्या होते हैं? ये सारे pronouns होते हैं, which means they are used instead of nouns. So these are called pronouns. As simple as that. अब आते हैं adjectives पे। एड का मतलब ही होता है बढ़ावा करना, अभी तो हम एडिशन बोलते हैं ना। तो एड मतलब टू एड टू व्हाट? टू एड टू नाउन्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव का एग्जिस्टेंस नाउन के बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एडजेक्टिव करता क्या है? वो नाउन की बात में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं बोलती हूँ दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ दिस इज अ
ब्लू बॉटल, ठीक है, दिस इज द ब्लू बॉटल। अब दिस इज अ बॉटल तो पता चल रहा था तुमको कि बॉटल इज अ नाउन, बट व्हाट इफ आई गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉटल, तो नाउ ब्लू क्या हो गया, ब्लू इज एन एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अब ये नहीं होता तो मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट तो नहीं था, लेकिन इसके होने से मेरे सेंटेंस का मतलब बहुत ईजी हो गया, सेंटेंस का मतलब बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल हो गया, ठीक है। तो ये होता है एडजेक्टिव। फिर हम आते हैं वर्ब पे, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेंसेस वगैरह में बहुत यूज होता है और टेंसेस में इसी को चेंज किया जाता है बेचारे को, है ना। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स एन एक्शन, स्लीप, ड्रिंक, ईट, थिंक, वॉक, रन, रिफ्यूज, व्हाटएवर, ये सारे वर्ब्स होते हैं। अब अगेन हम ऐड कर रहे हैं किसमें, वर्ब में, तो इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब, है ना। तो हाउ डू आई ऐड टू अ वर्ब, मैं बोल रही हूँ आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग और आई राइट, राइट। तो यहाँ राइट या राइटिंग क्या है, वर्ब है क्योंकि ये एक्शन हो रही है। अगर मैं बोलूं आई एम राइटिंग स्मूथली, अब मेरी राइटिंग कैसे हुई, स्मूथली हुई, तो मैंने किसका आंसर दिया, हाउ का। तो एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब कैसे हुआ है, कितनी हद तक हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, सबके आंसर्स आपको एडवर्ब देता है, ठीक है। तो एडवर्ब का एग्जिस्टेंस भी वर्ब के बिना मुश्किल है। आई नाइसली, क्या नाइसली, आई स्पोक नाइसली, तो स्पोक क्या है, वर्ब है, नाइसली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए अब आते हैं प्रेपोजिशन पे। पोजीशन, इसके नाम में ही पोजीशन है, प्रीपोजिशन, विच मीन्स इट डिसाइड्स द पोजिशन, फॉर व्हाट, किसकी पोजिशन, नाउन की पोजिशन। अगर मैं बोलती हूँ दिस बॉटल इज इन माई हैंड, तो इन क्या है, इन आपका प्रेपोजिशन है। द पेन इज इन माई हैंड, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, ऑन इज अगेन अ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के नाम में ही पोजिशन है, विच मीन्स इट शोज पोजिशन ऑफ व्हाट, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। फिर है कंजंक्शन। अब इसको कैसे याद रखोगे, जंक्शन क्या करता है, जब ट्रेन के बीच में तो जंक्शन आता है, दो दो प्लेटफॉर्म के बीच में, दो ट्रेन के बीच में जंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो इट्स अ मीटिंग पॉइंट, राइट, जंक्शन इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। सो junction in conjunction also means that where two sentences meet, okay, how two sentences meet and two sentences combine, how, through the use of and, or, but, so, because, though, although, since, for, many, until, till, ठीक है। ये सारे कंजंक्शन बिकॉज दे आर गोइंग टू जॉइन माई टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। और फिर आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं वो जो एक्सक्लेमेशन बताते हैं, लेट्स से ओ, वाओ, अल्लाह, ये सारे के सारे वर्ड्स इंटरजेक्शंस होते हैं जो आने की पॉसिबिलिटी एटलीस्ट तुम्हारी एग्जाम्स में तो कम है, बट दिस अगेन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शंस का इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में उतना ही है जितना सोलर सिस्टम में प्लूटो का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो आई ऑल्सो टॉट यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर हियर, ठीक है। आप इसको आराम आराम से सुन सकते हैं, आप इवन इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, because this is going to help you a lot in fill in the blanks. How, I'll tell you in the coming slides, ठीक है। चलिए, हाँ, अब यहाँ पे आता है सेकेंड वर्ड इज ubiquitous. अब ubiquitous means what? It again comes from Latin word which means everywhere. अब ऐसा याद रखो, ubique, ubique मतलब यूनिक, यूनिक पता है, मैं यूनिक मतलब हर अच्छी चीज, तो हमारी धरती यूनिक है क्योंकि यहीं पे जानवर रहते हैं, तो यूनिक, उबीक, उबीक मीन्स यूनिवर्सल, ठीक है। सो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिनोनिम्स जो है, इट मींस व्हाट, omni present, pervasive, pervasive means something which is out there, something which is completely present everywhere, so that is synonym of the same. Antonyms आप देख सकते हो, rare and scarce। अब पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ क्यों जरूरी है, ubiquitous इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब ये नाउन में ऐड कर रहा है, कैसे, यहाँ पे मैंने अगेन आई वाज टीचिंग माय किड्स, तो आई रोट दिस सेंटेंस, आई नो एन ubiquitous लैंग्वेज, एंड ubiquitous लैंग्वेज, देखो मैं लिखती अगर आई नो अ लैंग्वेज तो ये सही था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उसके आगे एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डाल दिया, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव डाल दिया कि मेरे को यूनिवर्सल लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है ubiquitous, वो मैंने क्या करा, सो दैट्स एन एडिशन टू इट, सो दिस इज व्हाट इज एन, इट इज एडजेक्टिव। अब इसको कैसे तुम फिल इन द ब्लैंक्स में यूज कर सकते हो, लेट्स से एक सेंटेंस है, ठीक है, पहले तो तुम्हें उसके लिए पता होना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज इट। अब इस सेंटेंस में आई हैव पुट अ ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ नाउन, ठीक है, लेट्स से मैं बोलती हूँ आई हैव अ डैश रूटीन,
ठीक है, तो आई हैव अ डैश रूटीन, यहाँ पे रूटीन नाउन है, अब आगे एडजेक्टिव ही आएगा, आई हैव अ, नाउन के साथ नाउन नहीं आएगा, नाउन प्लस नाउन कैन नॉट बी अ पेयर, ओके, आई हैव अ लेट्स से बिजी रूटीन और आई हैव अ वेरी टफ रूटीन, बिजी है, टफ है, ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स, और वाइस वर्सा, आई हैव अ बिजी डैश, तो बिजी टफ डैश नहीं, आई हैव अ बिजी रूटीन, तो रूटीन इज अ नाउन। सो ये वाली पेयर याद रखो, दैट फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें जो सवाल पूछा गया, द ब्लैंक दैट इज देयर, which part of speech are they asking you? Are they asking you a noun? Are they asking you an adjective? Are they asking you a verb? Whatever they are asking, you will be able to understand and answer it if you know what they are asking you. Okay, so that is why it's very important to know part of speech. Fine, chaliye. Next, you have Epicure, again, a very favorite word of mine. Epicurus or Epicure comes from the Greek philosopher Epicurus, who believed in pleasure principle. Okay, everything you do in life is for pleasure. Okay, be it food, be it traveling, be it adventure, everything is for pleasure. So, uske synonyms क्या होते हैं? Gourmet, connoisseur. Okay, all of these are synonyms of the same. And फिर तुम्हें पता तो चल ही गया होगा मैंने क्यों संजीव कपूर का फोटो यहाँ डाल रखा है ना? So that's how. एडजेक्टिव है ये एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन बोलते हैं आप, एपिक्यूरियन का मतलब यही होता है समथिंग दैट कम्स फ्रॉम एपिक्योर एज अ फिलोसोफर, तो एपिक्यूरियन पर्सपेक्टिव है ना, तो इसको हम एडजेक्टिव गिनते हैं, ठीक है। चलिए, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस वर्ड भारी भरकम है ना, अगेन इसका मीनिंग क्या बनता है, सरेप्ट, सरेप्ट मीन्स टू स्टील एंड रेपियर, रेपियर अगेन मीन्स टू स्नैच, ठीक है, तो सरेपियर वर्ड से निकल के आता है विच मीन्स यू नो चुरा लेना, ठीक है। अब ये याद रखो हमेशा, इसको कैसे याद रखोगे, उल्टा सरियल वर्ड से इसको आप, मैं तो इसको ऐसे याद रखती हूँ, सरियल का ऑपोजिट है, सरियल मतलब अच्छा, सरप्टिशियस मतलब बुरा, बुरे में बहुत कैटेगरी अलग है उसकी, लेकिन सरियल वर्सेस सरप्टिशियस, तो इस तरीके से मैं दो वर्ड याद रख लिए, सरियल अच्छा, सरप्टिशियस बुरा, ठीक है। तो सरप्टिशियस का मतलब अगेन फोटो से समझ गए होंगे तुम, मनी हाइस्ट है ना, रैप्चर, स्नैच समथिंग, स्टील समथिंग, सबसे बड़ी हाइस्ट है ये, राइट। सो सिनोनिम्स आर ऑफ कोर्स क्लैंडस्टीन एंड फ्यूटिव, और फर्टिव एज दे कॉल इट, एंड एंटोनिम्स आर ओवर्ट एंड ब्लेटेंट, ठीक है। So this is how you can actually remember these words, and that too in a very proper manner. Okay, and after this, I mean, after this gets over, test yourself. Let's say write a random word. Let's say write surreptitious in a book. Okay, और rather मैं तो वही बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ surreptitious अभी से लिख दो, हम जब 40-50 वर्ड्स खत्म करेंगे उसके बाद try to write it down. Try to write it on your own कि उसका मतलब क्या होता था. If you can remember it, I have done my job. ठीक है, so that's how. चलिए, नेक्स्ट अगेन उसी का सिनोनिम है, फर्टिव जो आगे था उसी को मैंने वापस लिया है यहाँ पे, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स आए हुए हैं एग्जाम में और बार बार, सो दैट्स व्हाई इसको मैंने अलग से भी लिया है। दिस आल्सो मींस अगेन अ हिडन और अ सीक्रेट समथिंग, थेफ्ट और रॉबरी, सो दैट आल्सो हैव पुट इट हियर ओनली, सो यू गेट एन आइडिया अबाउट बोथ द वर्ड्स, ठीक है। चलिए, perusal, see, peruse and pursue दोनों में बहुत फर्क है, do not get confused. Peruse means scrutinize, scrutinize मतलब एकदम ध्यान से करना, so basically जब कोर्ट्स में, जजमेंट्स में अगर हम बात करते हैं, so lawyers use these words a lot, ठीक है, so I peruse in front of my honorable, you know, lordship, so this is how you go about understanding it. So peruse means to inspect, to read something very thoroughly, completely, ठीक है, और ये एक नाउन है, ठीक है, पेर्यूजल, एडमिसल, ये सारे नाउन, एल जिसके पीछे भी सफिक्स एल लगता है, सफिक्स मीन समथिंग व्हिच फिक्सेस लेटर, ओके, वर्ड के एंड में लगने वाला, सो पेर्यूजल, एडमिसल, डिसमिसल, ठीक है, दीज ऑल वर्ड्स आर नाउन्स, ये हमेशा नाउन्स ही होते हैं, ये भी याद रखो। अगेन अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड व्हाट नाउन्स आर, अगेन अ नेम। आप बोलोगे मैम पेर्यूजल किसका नाम है, बेटा अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो चीज है, जो वर्ड जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पेर्यूज, उसको हम बोलते हैं नाउन्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो जो भी चीजें कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन चीजों में नहीं फिट होती, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिट हो सकती हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी अगेन आप बोलोगे हाँ ये तो एक कॉमन नाउन है, परफेक्ट कॉमन नाउन भी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एडिशन, एडिशन क्या है, एडिशन इज अ रैंडम वर्ड, वो तो किसी में फिट नहीं हो रहा, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिट कर सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इट्स जस्ट देयर। सो ALTION, शन, ठीक है, सो नेस, ये सारे जिसके पीछे भी लगते हैं, ये सारे हमेशा नाउन्स होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट, ओके। चलिए, देन यू हैव ओस्टेंसिबल, ठीक है, ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल का ऑपोजिट होता है रियल,
ठीक है, ये कॉमर्स में आता होगा ऑस्टेंसिबल ओनर एंड रियल ओनर। ऑस्टेंसिबल मतलब दिखाना, ठीक है, ऑस्टेंडियर मतलब दिखाना। जैसे ये देखो इस फोटो में वो दिखा रहा है कि वो घर उसका है, लेकिन उसके पीछे उसका एक्चुअल घर है, राइट। सो ये बता रहा है कि ये मेरा घर है, विच मीन्स ही इज शोइंग ही इज नॉट द रियल पर्सन। तो ऑस्टेंसिबल का ऑपोजिट होता है रियल, ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ अ प्लेस एंड ऑस्टेंसिबल और रियल ओनर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। सो अगेन इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखें आपने स्क्रीन पे, you're already going to understand that। पार्ट ऑफ स्पीच अगेन इसका एडजेक्टिव है, मैंने जिस तरीके से बोला इसको मैं अलग से नाउन की तरह नहीं यूज कर सकती। जैसे मैं इसके पीछे ओनर लगा रही हूँ, मैं इसके पीछे ओनर लगा रही हूँ, है ना, ऑस्टेंसिबल ओनर, ऑस्टेंसिबल ऑथर, ठीक है, विच मीन्स ही इज शोइंग हिमसेल्फ टू बी, लेकिन वो है नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाट द वर्ड मीन्स। चलो फिर है फेटर, अगेन अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है, इंग्लिश वर्ड फीटर में से वर्ड या फीचर में से वर्ड निकल के आता है, जर्मनिक ओरिजिन का वर्ड है और इसका मतलब होता है फुट। अगेन फीट, फीट जो आता है ना वो इससे ही आता है, फीट वर्ड से ही आता है फेटिश, ओके, और इससे ही आता है अगेन। देन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, इसके भी रूट्स हैं, जैसे कि पेडिस, ठीक है, तो पेडिस मतलब पेड, पेड मतलब अगेन पैर, तो पेडिस, तो पेडेस्ट्रियन, फिर पेडिक्योर, ठीक है, वो इन सब से निकल के आते हैं। तो फेटर अगेन फीट से रिलेट करता है, तो ये ऐसे याद रखना, इसके वर्ड में एफ डबल ई टी, एफ ई डबल टी की जगह एफ डबल ई टी ऐसे करके याद रखो, विच मीन्स पैर। तो ये जो पैर में ये बांधते, पुराने जमाने में बांधते थे ना, पैर में ऐसे भागती है ताकि वो कैदी जो है भाग ना जाए, एंड तो उसको पैर से ये थोड़ा वजन वाला इसको पैर से बांध देते थे ये लोग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेटर, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच अगेन इसका नाउन ही है, ठीक है, क्योंकि ये और कहीं पे भी एडजेक्टिव है नहीं है, ठीक है। हाँ, फेटर्ड होता तो आप बोलते फेटर्ड क्रिमिनल। तो ये भी देखो कि इसी वर्ड को मैं एडजेक्टिव कैसे बना सकती हूँ। तो फेटर्ड मैंने करा तो आई मेड फेटर्ड क्रिमिनल, फेटर्ड मतलब जिसके पैर में फेटर बांधी हुई है, वैसा क्रिमिनल। तो एक ही वर्ड को आप अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि लव, है ना, तो लव क्या है, ये वर्ब भी है नाउन भी है। टू लव समवन इज अ वर्ब ऑल्सो, लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, लव इज अ नाउन ऑल्सो। अब लव को मैं को एडजेक्टिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, लवेबल या लवली, है ना, क्योंकि मैं क्या करूंगी, लवेबल, लवेबल में क्या, दिस इज अ लवेबल पर चाइल्ड, ही इज अ लवेबल चाइल्ड, ठीक है, तो लवेबल चाइल्ड, तो लवेबल क्या हो गया, लवेबल बिकेम एन एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद है लवली, लवली भी एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर अभी मेरे को इसको बनाना है वर्ब, तो वर्ब तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब मेरे को इसको बनाना है एडवर्ब, एडवर्ब में मैं क्या करूंगी, लविंगली, शी सर्व्ड मी स्वीट्स लविंगली, या शी सर्व्ड स्वीट्स टू मी लविंगली। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, I took a word and I changed it to all the parts of speech. This is the best way. Why? Because इससे मेरे को पता पड़ेगा कि how do I go about understanding things, है ना। चलो फिर है नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मतलब, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है कि यार हर चीज एक चीज से बंधे हुए रहना, मतलब मैं एक चीज को बिलीव करती हूँ और मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी, है ना। तो मैंने क्यों फोटोज डाले हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये लोग अपने बिलीव से इतने प्रोक्लाइव, इतने इंक्लाइंड होते हैं कि वो किसी और की बात नहीं मानते हैं, राइट। सो इसके मीनिंग्स अगेन है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब किसी के प्रति ढलाव होना, इसीलिए ही हम इंक्लाइन स्लोप बोलते हैं। इंक्लाइन स्लोप का मतलब इसके प्रति ढलाव होना, इसके प्रति ज्यादा बहकना नहीं बोलेंगे, बट इसके प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड होना, है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्लिविटी, राइट। चलिए अगेन ये नाउन है, ठीक है, आई टी वाई, कैविटी, प्रोक्लिविटी और डेंसिटी, ओके, आई टी वाई भी जिसके पीछे लगता है वो भी नाउन्स होते हैं। मैं धीरे धीरे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, ये भी सारे नाउन्स होते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगेन वन ऑफ द फेमस एक्टर्स आई हैव पुट इन। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये वर्ड निकल के आता है लैंग्वेज से, इससे बहुत सारे वर्ड्स निकल सकते हैं, लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक, तो सब लिंगुआ, लिंगुआ से वर्ड निकल के आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगेन मीन्स टू बी वीक और फेंट, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर गेटिंग अ फीलिंग दैट अ पर्सन हु इज वेरी लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब बहुत ही थका हारा इंसान है। लैकडियास्कल भी बहुत बार पूछा गया है क्या एग्जाम में, ठीक है। सो ये भी वर्ड हमेशा ध्यान ही रखिएगा, मैंने इसको स्पेसिफिकली लिखा है। तो बेसिकली ये जो मैं वर्ड्स करा रही हूँ, मैं ऐसे भी वर्ड्स करा रही हूँ जो आपके सिनोनिम्स में भी आपके एग्जाम के वर्ड्स कवर हो रहे हैं, एंटोनिम्स में भी आपके एग्जाम के वर्ड्स कवर हो रहे हैं। सो यू डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड दिस एंड डू एनीथिंग फॉर द, अगर तुमने इतनी चीजें यहाँ आज की जो मैंने ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स कराए, अगर तुमने उसको सही से कर लिया है तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी फॉर सेइंग दिस, ठीक है। सो दैट इज द सेम।
अब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि मैं इसके पीछे लगाऊंगी दिस इज अ वेरी लैंग्वेड, ही इज अ वेरी लैंग्वेड पर्सन, ठीक है। ओके, लैंग्वेड पर्सन का मतलब क्या होता है? लेथार्जिक, बहुत ही हमेशा थका थका रहने वाला, है ना। तो मैं इसको इसके पीछे नाउन लगाऊंगी ही, ठीक है। ही इज वेरी लैंग्वेड, अगर मैं इतना भी लिखती हूँ तो मैं ही के लिए लैंग्वेड यूज कर रही हूँ, तो ही स्टिल अ प्रोनाउन, राइट। तो ये ध्यान रखो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है। ग्रैंडी, अगेन ग्रैंड वर्ड तो हमें पता ही है, ग्रैंडी और भी वर्ड निकलता है इससे। ग्रैंडी और मींस आल्सो वेरी फेम, वेरी वेरी ग्रैंड, या तो ग्रैंडियोस इज आल्सो वर्ड फ्रॉम दिस। ग्रैंडिलोक्वेंट, ये अगेन दो वर्ड से बन के आता है, लोकिया या लोक्योर, अगेन मींस एडजेक्टिव, और इसका मतलब ही होता है ग्रैंड, विच मींस पॉम्पस। पॉम्पस मतलब बहुत शो ऑफ, ठीक है। अगेन मैंने उसमें क्यों किसका फोटो डाला है? करण जौहर, सबसे बड़ा ग्रैंडिलोक्वेंट एंड पॉम्पस पर्सन, है ना। टू बी वेरी शोइंग ऑफ थिंग्स, टू बी वेरी, जैसे वो उसके शो में भी ही है, ही कंटिन्यूअसली स्पीक्स वेरी lavish and very pompous things, so that's why grandiloquent, ठीक है। उसका एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा? अनअडॉर्न्ड। अडॉर्न्ड मतलब फुल ऑफ, अडॉर्न विद पर्ल्स, ठीक है, व्हिच मींस आई हैव वोर पर्ल्स ऑल ओवर, सो दैट इज कॉल्ड अडॉर्न। तो उसका ऑपोजिट होगा अनअडॉर्न्ड, अनअडॉर्न्ड एंड अनप्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड, प्रिटेंड ना करना, है ना, जैसा है वैसा रहने देना, और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट इट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। चलो, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक, अगेन इस वर्ड को याद रखो, सोना से, सोना मीन्स टू स्लीप, ठीक है। तो सोपोरिफिक जो पर्सन होता है, दिस इज अ पर्सन हु स्लीप्स एंड हु इज इन अ डीप स्लीप, राइट। सो दिस शोज ड्राउजीनेस, दिस शोज somnolent, दिस शोज पर्सन हु इज इन डीप स्लीप, राइट। सो ये भी चीज ध्यान रखनी है, दैट व्हाट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड दैट इज व्हाई द पिक्चर आल्सो रिफ्लेक्ट्स द सेम आइडिया एंड सेम थिंग, ठीक है। नाउ एंटोनिम भी इसका साइड में दिख रहा है, यू हैव इनविगोरेटिंग, यू हैव स्टिमुलेटिंग, ठीक है। तो यू हैव इनविगोरेटिंग मतलब अ पर्सन हु इज क्वाइट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग इन सर्टेन। स्टिमुलेटिंग मींस अ पर्सन हु इज क्वाइट इनटू द आइडिया ऑफ द सेम, ठीक है। सो इस तरीके से सोपोरिफिक सोना से याद रखेंगे हम, ठीक है, इसको हम सोना से याद रखेंगे, राइट। सो दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस वर्ड, है ना। चलो, नेक्स्ट वी हैव पार्सिमोनियस। अगेन द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड एंड अ फोटो कुड बी दिस, एज व्हाट आई फेल्ट जब मैं बना रही थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ठीक है। सो पार्सिमोनियस इज अ पर्सन हु इज व्हाट, हु इज वेरी कंजूस, ठीक है। ये तो बेसिकली इस मीम को देख के तो बहुत सारी चीजें तुम्हें याद आ गई होंगी, बट दिस इज व्हाट पार्सिमोनियस मींस। पार्सिमोनियस का वर्ड अगेन मैंने तुमको रूट वर्ड दिया हुआ है, बट इसका सिनोनिम माइजरली। माइजरली मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज वेरी 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 बहुत कंजूस, ठीक है। जैसे हम बनिया और सिंधी को बोलते हैं ना कि बहुत कंजूस है, ठीक है। मैं खुद बोल रही हूँ, राइट, अपने आप को, ठीक है। सो दैट इज माइजरली, पेनूरियस एंड मर्सिनरी, फाइन। सो दीज आर द सिनोनिम्स दैट आर जनरली कोरिलेटेड विद पार्सिमोनियस, है ना। तो इस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो। देन यू हैव सिमिलर रूट्स से मैंने सिमिलर वर्ड्स निकाले हैं जिसके भी मतलब यही होते हैं, एंड इसके एंटोनिम स्पेसिफिकली याद रखना जरूरी है, क्योंकि म्यूनिफिसेंट, तुमने मैग्निफिसेंट तो सुना है, म्यूनिफिसेंट एंड बाउंटीफुल का मतलब भी होता है पर्सन हु गिव्स, ठीक है, और जिसका दिल बहुत बड़ा है। सो दिस इज व्हाट द एंटोनिम ऑफ पार्सिमोनियस वुड बी, एंड दिस पिक्चर डेफिनेटली सूट्स परफेक्टली हियर, क्योंकि अक्षय कुमार हिफिर हेरा फेरी में कितना कंजूस था वो तो हमें ही पता है, ठीक है। ही वाज लूटिंग पीपल हियर एंड देयर सो दैट ही कुड गेट व्हाटएवर ही वांटेड, सो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन हियर लग रहा है, ठीक है। बड़े आगे, आई एम होपिंग यस, है ना। And this is just the beginning. Trust me, I have amazing things coming up for you in this whole slide. So be with me till the end so that you do not miss even one single relatable meme or picture connecting the word. ठीक है, चलिए। देन यू परोकियल। परोकियल मैंने पारो से निकाला है, ठीक है। पारो थी हमारी, ठीक है, वो कैसी थी? शी वॉज वेरी नैरो, नैरो माइंडेड तो नहीं बोलेंगे, बट शी वॉज वेरी इनटू देवा। सो पारो इज व्हाट, पारो इज परोकियल। पारो परोकियल क्यों है? क्योंकि पारो नैरो माइंडेड है ना। तो इस तरीके से पारो को याद करेंगे हम लोग। तो परोकियल और नैरो माइंडेड और पारो की छोटी अकल। This cannot be interpreted in any way else, but this is something that I made. I mean, I took so that I could train you for the words that are coming. ठीक है। सो सेक्टेरियन, सेक्टेरियन मतलब सेक्टर से वर्ड निकल के आता है ये, है ना। सेक्टेरियन वर्ड्स देखो कहाँ कहाँ से बन के आ रहे हैं। सेक्टेरियन मतलब जिसका एक थॉट वो बहुत ही लिमिटेड है, वो उसी चीज में सोचता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कुएं का मेढक, तो पर्सन हु थिंक्स ओनली इन दैट मैनर, तो उसको बोलते हैं परोकियल, है ना।
उसका ऑपोजिट डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्रॉड, लिबरल, अ पर्सन हु हैज अ वेरी वेरी ओपन माइंडसेट, ठीक है? सो दैट इज एन एंटोनिम ऑफ द सेम, ठीक है? सो दिस इज दैट। अब एडजेक्टिव ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी परोकियल पारो, तो परोकियल तो ऑफ कोर्स एडजेक्टिव हो जाएगा ना, सो दैट्स हाउ इट कैन बिकम एन एडजेक्टिव आल्सो, ठीक है? चलिए, वेरी नाइस वर्ड, ठीक है? टैसिट। टैसिट क्या होता है? टैसिट मतलब बोले बिना ही समझना, ठीक है? कुछ बोले बिना ही तुम समझ गए, उसको बोलते हैं टैसिट। टैसिटर्न, टैसिटर्न भी इससे वर्ड बन के आता है। टैसिटर्न मीन समथिंग विच इज क्वाइट इम्प्लाइड, है ना? सो इस वर्ड का मतलब तुम समझ ही गए हो, सो दैट्स व्हाई द मीन, समझ रहे हो ना तुम? सो समझ रहे हो ना तुम का मतलब, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसको बोलना नहीं है मुझे, सो दैट्स टैसिट। सो यहाँ पे बोलोगे टैसिट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। टैसिट मीनिंग, अगेन टैसिट क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो देखो, तुमको अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं भी समझ आ रहा है तो उसका एक सेंटेंस बना दो। तो जैसे मेरे को, अगर मैं मान रही हूँ कि एडजेक्टिव है, तो मेरे को उसके लिए नाउन होना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के बिना तो एडजेक्टिव आ नहीं सकता। तो मेरे को इस तरीके से चीजें मिलानी पड़ेंगी ताकि मैं उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस तो बनाऊं, लेकिन उसको अच्छे से खुद भी समझ सकूं और किसी और को भी समझा सकूं, है ना? और एग्जाम में फर्स्टली उसको सॉल्व कर सकूं। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस, राइट? सो दैट्स हाउ, ठीक है? नेक्स्ट यू हैव सिड्यूलस। सिड्यूलस, सिड्यूलस से तुम्हें याद आएगा सिड्यूस करना, है ना? बट अभी हम याद रखेंगे सिड्यूलस मतलब सिंसियरली सिड्यूस करना, अच्छे से सिड्यूस करना। सो सिंसियर सिड्यूस, ऐसे इस तरीके से इसको याद रखो, विच इज सेड्यूलस। सेड्यूलस मीन्स डिलिजेंटली सिंसियरली डूइंग समथिंग, राइट? मैंने इसमें अगेन क्यों आमिर खान की पिक्चर लगाई है। He has done a lot of hard work, ठीक है? Even in times of Dangal, even in times of the Gajni, ठीक है? He's done a lot of diligent work, and he's also very considered very sincere actor himself, right? Industrious means, again industrious का spelling गलत हो गया है। Industrious का मतलब ये again a person who is quite hardworking, है ना? So that is also something that we can take from Amir Khan, उसका inspiration लेके, है ना? यहाँ पे मैं सलमान खान भी डालना चाहती थी because of what he did in his performance in ये which the movie, boxing movie. I'm still not able to recall the name, with Anushka Sharma. I wanted to put that, but I thought this would be a apt image. ठीक है? Please correct me if you think I should have put Salman Khan in front of Amir Khan here. ठीक है? अगेन ये एक एडजेक्टिव है, सिड्यूलस एक्टर बोलूंगी मैं ना, सिड्यूलस OUS विच मीन्स एन एक्टर, ठीक है? सो ये भी याद रखो, जैसे देखो OUS है, तो OUS जब भी लगता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैंने आगे भी बताया, पार्सिमोनियस, सिड्यूलस, ठीक है? फ्यूरियस, ओके? सो OUS again denotes adjective, it denotes some extra quality of a noun, so that is also something that you need to remember. Keep making notes of these so that आप इसको भूले नहीं, ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये एडजेक्टिव्स में ही लगता है, तो एडजेक्टिव्स के नीचे लिख दीजिए इसकी लिस्ट, नाउन के नीचे लिख दीजिए उसकी लिस्ट, so that you will not forget these words, and or forget these suffixes rather, okay? Yes. सर्कमलोक्यूशन, सर्कम मतलब हमें पता है, सर्कम मतलब हम सर्कमफरेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें आगे का वर्ड नहीं भी पता है तो भी सर्कम वर्ड तो हमें पता ही है, सर्कमफरेंस होता है ना? तो सर्कम मतलब घुमाना, अराउंड, और लोक्यूटर अगेन मीन स्पीच, लोक्योर, लोक्वेशियस भी इससे वर्ड बनता है। लोक्वेशियस मतलब पर्सन जो स्पीक्स अ लॉट, ठीक है? सर्कम लोक्यूशन मतलब घुमा घुमा के बातें करना, है ना? सीधे पॉइंट पे नहीं आना। सो दैट्स वाई इमेज, शॉर्ट में निपटाओ ना, सीधे पॉइंट पे आना, विच मीन्स घुमा घुमा के मत बोलो यार, सर्कम लोक्यूटर मत बनो, है ना? अगेन मैंने बताया था ION लगता है जिसके पीछे, वो नाउन होता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन है, ठीक है? इस तरीके से चीजें यू विल बी एबल टू टेक वेरी वेरी क्लियरली। परफेक्ट, चलते हैं आगे, है ना? यस, चलिए। देन यू हैव प्रूरियंट। प्रूरियंट, अगेन प्रूरियंट को आप प्यार से जोड़ सकते हो, प्यारा प्यूरियंट, है ना? तो प्यार प्यूरियंट, या तो प्यार प्रूरियंट, जो भी बोलो, ठीक है? तो प्रो की जगह प्रा लिख दो, ठीक है? प्रा प्यारा, कुछ पंजाबी हो गया, है ना? सो प्रूरियंट मीन्स, अगेन टू मीन्स व्हाट? द पर्सन हु इज एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल मैटर्स, है ना? अगेन ये वर्ड आया हुआ है एनमैट में, पास्ट ईयर में। So libidinous, libido again means person who is in, person who is involved or at least interested in sexual interests, okay? So that's what the synonym of the same is. Iska antonym priggish and genteel. Genteel means a person who does not involve himself in all of these things, okay? And adjective hai, of course he's a prurient person, so he's a prurient individual, which means he's interested in these matters. I did not explain you the image because I'm hoping that that was quite clear, ठीक है? चलिए, यस।
Now you have supercilious. Supercilious means what? Supercilious और super, अब super को याद रखो, super मतलब बहुत, cilious मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो करने वाला, सुपीरियर समझने वाला, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी सूट्स देखी है तो आप हार्वी स्पेक्टर को भी सुपरसिलियस बोल सकते हो, राइट। और ऑफ कोर्स जया बच्चन, ठीक है, यू कैन सी इन मेनी मीडिया पैप्स के साथ भी वॉट एवर शी टॉक्स एंड वॉट एवर शी बिहेव्स, इट क्लियरली शोज वॉट शी इज, एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल हर सुपरसिलियस। ये इसलिए भी है कि आपको इमेज के साथ साथ वर्ड कनेक्ट करने का याद रहे, एंड आई एम गारंटिंग कि इन 200 में से एटलीस्ट 3 वर्ड्स तो आएंगे यार। अब आप बोलोगे मैम 3 वर्ड्स के लिए 200 वर्ड्स क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, तो फिर तो ऐसे तो दुनिया भर के वर्ड्स हैं, कैसे ही क्या ही पढ़ लोगे, है ना। सो एटलीस्ट ये तुम्हारे पास है कंपाइल्ड चीज, तो तुम इसको और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एडजेक्टिव डेफिनेटली मैं बोलूंगी सुपरसिलियस जया बच्चन। सो ये एडजेक्टिव डेफिनेटली है, जया बच्चन नाउन है, और आगे मैं लगाऊंगी सुपरसिलियस, तो ये एडजेक्टिव तो बिल्कुल ही बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू गेट टू दिस वर्ड, है ना। चलते आगे। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट, नाइस, कैस्टिगेट। अगेन इसको कैसे याद रख सकते हो? इंडिया में ना कास्ट के नाम पे बहुत झगड़े होते हैं ना, है कि नहीं? रिलीजन के नाम पे होता है, बट याद रख लो, चलो मान लो कास्ट के नाम पे होते हैं। तो कैस्टिगेट का मतलब टू क्रिटिसाइज, है ना। क्रिटिसाइज करना किसी को भी, किसी की व्हाट यू से बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करना किसी को। तो पिक्चर्स तो तुमने थोड़ी बहुत देख ही ली हैं, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है थोड़ी बहुत इसको, राइट। सो इसका सिनोनिम होता है रेप्रिमैंड। रेप्रिमैंड अगेन का मतलब होता है टू पनिश और टू अपोज समथिंग और सम आइडिया और सम पर्सन और एनीथिंग। सो ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स मींस एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब तारीफें करना किसी की, ठीक है, एकदम उसके हाँ में हाँ ही भरना, तो उसको बोलते हैं एक्सोनरेट या फ्लैटर। एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ वर्ब, कैस्टिगेट, एनफ्लेट, एनफ्लेमेट, इन्फ्लेमेट, ठीक है। तो एटीई जनरली शो वर्ब, ओके। और ये एक्चुअली वर्ब का पास्ट टेंस है, ईट का पास्ट टेंस भी बनता है, तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। सो that's a verb. Fine. चलिए, let's move ahead. परफेक्ट। बिगवाइल। बिगवाइल कौन होता है? ठीक है, बिगवाइल मतलब चार्म समवन इन अ डिसेप्टिव वे। अब आप बोलोगे डिसेप्टिव क्यों है भाई मैम, फोटो में, फोटो तो डिसेप्टिव नहीं है, लेकिन चार्म करना किसी को। लेकिन पता है वो प्ले बॉय, प्ले बॉय जो जो भी मैगजीन है, ठीक है, सो दैट हैज बीन गिवन टू एंटाइज पीपल्स, बट यहाँ पे व्हाई एम आई यूजिंग दिस, बिकॉज प्ले बॉय जनरली उन लोगों के लिए भी यूज होता है जो सिर्फ बटर मारने के लिए या मस्का लगाने के लिए किसी से बात करते हैं, उनसे फ्रेंडशिप्स करते हैं। So this in that sense is used in a way that you are charming someone, but not in a very honest way. We are just wanting to, buttress them. Fine. So that's what big while means. So yeah, this meme, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो, of course. ठीक है. And we all know how deceptive it was. So Daya also gave a very befitting reply to Jetalal in this exactly after this line, right? And इसका ऑपोजिट होता है डिस्प्लीज। डिस्प्लीज मतलब अर्क, आई एम अर्क्ड बाय दिस। अर्क्ड बाय मीन दिस मीन्स आई एम नॉट लॉल हैप्पी, आई एम नॉट लॉल दैट, सो टू क्रिटिसाइज समवन, है ना। एंड अगेन बिगवाइल समवन means to amuse them, so that's again a verb, है ना। किसी को अम्यूज करना, किसी को बिगवाइल करना, ठीक है। चलिए, क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब बहुत ही नाइव मतलब बहुत आराम से किसी को बिलीव कर लेता है। तो इन दोनों के अलावा तो हमें इस वर्ड को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। क्रेडुलस मींस ये दोनों तो नाइवनेस की मूर्ति है कि नहीं, है ना। सो दीज पीपल आर सो गलिबल एंड स्पेसिफिकली हंसा। प्रफुल एक्सप्लेन्स एनीथिंग टू हर एंड शी बिलीव्स इट, एंड दैट इज व्हाट द मीनिंग एग्जैक्टली इज, कि कुछ भी मान लेना, ठीक है। तो क्रेडुलस मतलब कुछ भी मान लेना। अगेन इससे आप एक और चीज रिलेट कर सकते हो, पता है क्या? क्रेडल। क्रेडल मतलब क्या? झूला, बच्चों का। तो बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल नाइव होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्रेडुलस लिखा। क्रेडुलस मतलब बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, इनोसेंट से भी बहुत ज्यादा इनोसेंट, मतलब जिसको बोले और वो मान जाए, ठीक है। गाय नहीं बोलते हम हिंदी में, बोलते बहुत गाय इंसान है। गाय इंसान किसको बोलते हैं हम? उसी को जो बहुत ही फटाफट चीजें मान जाता है ना। और उसका ऑपोजिट है प्रैग्मेटिक। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच दिस, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब नहीं है, ठीक है। क्रेडुलस इज नॉट अ वर्ब, अगेन आई एम सॉरी, ये चेंज कर रही हूं मैं। इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, इट इज अ क्वालिटी, सो इट इज एन एडजेक्टिव। यस, चलिए, ठीक है। देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अर्बेन।
Urbane means what? Urbane का मतलब होता है हाँ something, I am something. So of course I have given Pooh this award of getting this word. Urbane means something very fancy, courteous and refined in manner. And इसका again synonym होता है genteel, debonair, and antonyms is uncouth and boorish. Boorish मतलब someone who is very very बेचारा not very fancy, a person who is very mediocre. ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड बूरिश. ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे वर्ड बू से. बू इज व्हाट? टू बू समवन, टू हरास समवन इन अ वेरी नेगेटिव वे. तो उसको हम बूरिश करके इस तरीके से याद रखेंगे. सो या पू कुड बी अ वेरी वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्बेन, है ना. ठीक है, चलते हैं आगे. राइट, चलिए. देन यू हैव एग्रीजियस. एग्रीजियस मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड. आउटस्टैंडिंगली बैड मतलब सोचो कितना हद तक खराब है कि उसके आगे आउटस्टैंडिंगली लगाना पड़ रहा है. So something which is extremely shocking, something which is extremely bad is called egregious. ठीक है, तो इसके हम definitely hot chocolate Maggi noodles, seriously Maggi noodles ठीक था, hot chocolate नहीं ठीक था. So that's why for me this image was outstandingly bad. So that's why I put it. आपके हिसाब से जो भी egregious है, you can definitely put it in the comment, and you can definitely put a picture of the same so that I can get to know for you what is egregious. So yeah, that's there. Monstrous and abominable. Abominable again means something extremely bad. Okay, so that's what egregious means. है ना. चलिए. Then you have vindicate. Again a very good word. Vindicate means to clear of suspicion. किसी को रिहा कर देना. बोलते हैं ना बाइज्जत बरी किया जाता है हमको, तो किसी को रिहा कर देना, है ना. तो डेफिनेटली उसका बेस्ट सिनोनिम इज एक्विट और एक्सोनरेट, मतलब छोड़ देना. ठीक है, विंडिकेट. विंडिकेट ऐसे सोचो ना, विंडो दे दी तुमको, विंडो दे दी मतलब जाओ भागो. ठीक है, तो विंडिकेट को आप कैसे याद रख सकते हो? विंडो वर्ड से याद रख सकते हो. विंडो मतलब किसी को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, जाओ. ठीक है, तो किसी को ब्लेम से हटा देना, किसी के ऊपर से सस्पेशन हटा देना, दैट इज कॉल्ड विंडिकेट. ओके, दिस इज अगेन अ वर्ब. विंडिकेटेड, ही वाज विंडिकेटेड बाय द जजेस, व्हिच मींस ही वाज लेफ्ट अलोन टू गो फ्री by the judges. Of course, Sanjay Dutt, ठीक है, and we've all seen a movie on it, so we know it, right? चलिए. Then you have adumbrate. Adumbrate मतलब, adumbrate का मतलब बेसिकली यही होता है कि ऊपर बाहर की आउटलाइन बनाना, है ना. जो क्राइम पेट्रोल देखते हैं अगर, तो यू नो डेड बॉडीज निकलती हैं, तो you have this outline with a chalk and all. ठीक है, I am not sure how it happens in reality. It doesn't happen in reality like that, but still. तो adumbrate का मतलब यही होता है कि आप उसको आउटलाइन कर दो. ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट पिक्चर भी आपके सामने है. सो अगेन दिस इज अ वर्ड दैट कैन एक्चुअली पॉप अप सम टाइम इन योर एग्जाम. ये इतना इज नॉट आस्क्ड अ लॉट, बट इट हैज बीन आस्क्ड वंस, सो आई पुट इट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. विशिएट. विशिएट द क्लेम, है ना. विशिएट का मतलब स्पॉइल. भाई तूने तो पूरा पूरा चीज ही स्पॉइल कर दी, तूने तो बस स्पॉइलर. यू विशिएटेड माय एक्सपेक्टेशंस, यू स्पॉइल्ड माय एक्सपेक्टेशंस अबाउट एनिमल. ठीक है, सो आई एम होपिंग एनिमल सबने देख ली है, मैंने तो नहीं देखी है. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट डू गिव स्पॉइलर्स इन द कमेंट बॉक्स. डू नॉट राइट एनीथिंग अबाउट द मूवी बिकॉज आई हैव येट टू वॉच दैट. ठीक है. So yeah, vitiate means to spoil something, to spoil the quality of it, right? So uske synonyms, of course, है corrupt and debauch, and then you have rectify and ameliorate. Ameliorate का spelling is also wrong, ठीक है, but yeah, I'll make it perfect. And then, of course, this image shows what? Image is very nice, and why did I put it again is because this is something that I found very relatable also. कि भाई Jio, vitiating their promise by charging 6 paisa per minute for calls, and then they're saying what? And they're saying we are giving it for free. So that's why customers are blaming him. He's who, you all know that. ठीक है, चलिए. Let's now perfectly move ahead. ठीक है. परफेक्ट. कोनंड्रम. कोनंड्रम मतलब नखरे, ऐसा सोच के चलो. कोनंड्रम मतलब नहीं हम बोलते हैं कि ड्रामे बहुत है ना, तो कोनंड्रम को इस तरीके से रिलेट करो. तो कोनंड्रम क्या होता है? ऐसी कंफ्यूजिंग डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम. ठीक है, यू हैव लेफ्ट मी इन कोनंड्रम मतलब तुमने मुझे एक दुविधा में डाल दिया है ना. तो वो दुविधा में डाल दिया है का मतलब दैट इज कॉल्ड कोनंड्रम, दैट यू हैव पुट मी इन वेरी डिफिकल्ट पजलिंग थॉट डियर, है ना. सो दैट इज व्हाई कोनंड्रम. ठीक है, तो इसको आप ड्रामा से रिलेट करके यू कैन रिमेंबर दिस. कौन सा ड्रामा, ऐसा याद रखो ना, कौन सा ड्रामा, तो दैट इज कोनंड्रम. ठीक है, सो विच मीन्स पजलिंग, पता ही नहीं है ना. चलिए, ये अगेन नाउन है. वेरी नाइस, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. प्रोफ्लिगेट.
Profligate means to distract, recklessly extravagant or wasteful in the use of resources, which means वैसा इंसान जो बहुत ही extravagant खर्चा करता है और resources को use destroy करता है उसके use को. So again, मतलब again, my personal belief is that gold used by Bapilari is of course very much respected, but something little extravagant, मतलब वो कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते थे उनपे. So that's why recklessly extravagant in use of resources. So that's why I've put him his reference. I mean, I'm even explaining you the reference of the pictures, and I'm very sure you might have gotten it before even I explained it by just reading the words. So this is how you can take it, you know, in that stride. Okay. So that is how it is, है ना? चलिए. Gauchier means very unsophisticated. So ये वाला मैंने एक I guess video है ये, I would want to play it for all of you. Yeah. So ये I guess जिसने भी Friends देखा है उसने ये देखा होगा. ठीक है. That this episode Rachel comes and Rachel बोलती है oops I ये गिर गया, and she starts to pick it up, and you know Joey says that no it's not like that, you are at Joey's place करके वो इतना lump of noodle गिरा देता है, फिर वो गिरा करते हैं, and then that becomes a very funny scene. This is when she moves in with Joey, है ना? So those of you who have watched Friends would definitely find it very relatable, which I did also, but yeah, that's how it came. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड गॉशियर. गॉशियर मीन्स वेरी अनसोफिस्टिकेटेड, है ना? तो उसका ऑपोजिट अगेन क्या होगा? अर्बेन. हमने ऊपर ही पहले किया, तो उसका ऑपोजिट इज अर्बेन. अर्बेन मीन वेरी सोफिस्टिकेटेड, है ना? फोक स्पून से खाते हैं, दैट इज हाउ अर्बेन मीन्स. ठीक है. सो अगेन दिस इज अ नाउन, गॉशियर. ठीक है. अगेन इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा पता है? गॉशियर का इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा गॉश. गॉश का मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड इंसान, तो इसका एडजेक्टिव ये बन सकता है. जो ये वर्ड है ये तो नाउन है, बट इसका एडजेक्टिव फॉर्म और ये बन सकता है. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज माय पर्सनल फेवरेट, है ना? क्योंकि आई यू नो वाज वेरी इंटरेस्टेड व्हाइल पुटिंग दिस. सो या, ट्रेचरस. ट्रेचरस मतलब टू चीट और टू ट्रिक समवन. ठीक है. तो इस वर्ड में ही चीटिंग का कहीं ना कहीं यू कैन गेट एन आइडिया. सुनते ही कुछ ऐसा लग रहा है. ट्रेचरस मतलब चीट, है ना? तो लक्ष्मी चिट फंड से सबसे बेहतर एग्जांपल कौन हो सकता है चीटिंग का, है ना? तो आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर एंड रिलेटेबल मीम और बेटर रिलेटेबल पिक्चर देन दिस फॉर एक्सप्लेनिंग यू ट्रेचरस. सो ट्रेचरस चीटिंग, चीटिंग में लक्ष्मी चिट फंड याद रखना. ठीक है. तो अगेन चर्च चिट फंड, cheat, treacherous, all of this you can remember. ठीक है. Words definitely synonyms are vacillating, fickle, and apathetic again means cheating, and antonyms में dutiful and devout. Dutiful means a person who is very very you know sincere, trustworthy, and all of that. So that is treacherous for you. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. Satiate. Satiate मतलब satisfy. इससे वर्ड निकल के आता है satisfy. ठीक है. इसका नाउन फॉर्म है. ठीक है. सो satisfy is a verb and इसका नाउन इज satiate. ठीक है. तो satiate मीन्स एकदम फुल तक भर जाना. तो यहाँ पे ये इमेज, ठीक है, अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं. दिल अभी भरा नहीं मतलब अभी मैं satisfied नहीं हूँ. आई एम नॉट satiated. ठीक है. अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी satiate नहीं हुआ, ऐसा याद रखो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट satiate means, some to satisfy yourself, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउ इससे पहले कि मैं आगे कुछ और वर्ड्स डिस्कस करूं, आई वांट टू से दैट जो भी हम एग्जाम में जो भी तुम्हें क्वेश्चन टाइप्स आते हैं वोकैबुलरी के, देखो एक तो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वहां पे वर्ड आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कोई दो राय नहीं होता. दूसरी चीज जो होती है जिसमें तुम्हें सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें से तुम्हें वर्ड्स को, लेट्स से किसी को वर्ड को अंडरलाइन किया होता है, तुम्हें उसके ऑपोजिट ढूंढने होते हैं, तो उसमें कंटेक्चुअल मीनिंग से तुम उसको समझ सकते हो. तीसरी होती है एनालॉजीज में पूछते हैं वो लोग. एनालॉजीज में वो तुम्हें सिम्फनी और कैकोफनी पूछ लेंगे, विच मीन सिनोनिम एंटोनिम की पेयर है, बट उसके लिए तुम्हें दोनों वर्ड्स पता होने पड़ेंगे, तो ही तुम उसकी एनालॉजी समझ पाओगे. सो दैट इज वन वे विच दे कैन आस्क यू वोकैब. चौथी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में मैं सच्ची बता रही हूँ, ट्राई पार्ट ऑफ स्पीच टेक्निक. ठीक है. I definitely do a lecture before that for part of speech techniques. कैसे part of speech से you can solve fill in the blanks. I'll definitely do that. If you want any more lectures on grammar on specific topics, please put it in the chat box. I'll comment box so that I'll pursue that also for you. And that is how we can go about doing it. ठीक है? So do not worry. चलिए. Done. So you have hedonism. Hedonism मतलब क्या? Again, hedonism हमने आगे क्या किया था? ठीक है. हमने आगे क्या किया था? एपिक्योर. एपिक्योर और हेडोनिज्म एकदम सेम है. एपिक्यूरियन और हेडोनिस्ट दोनों ही बिलीव्स क्या है? दे मीन टू इंडल्ज, टू सेल्फ इंडल्जेंस, परस्यूट ऑफ प्लेजर. तो हेडोनिज्म का सिनोनिम क्या हो सकता है? एपिक्यूरियन. ठीक है.
right? So this is Epicurean. Epicurean means hedonist, hedonism. तो of course क्या बोलती तू? ठीक है, चलिए, नाइस। देखो, अपोजिट और अपोजिट आर नॉट द सेम, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, सो इसको होमोफोन्स है दोनों। होमोफोन्स मींस साउंडिंग द सेम बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम इन द मीनिंग। जैसे मॉर्निंग और मॉर्निंग होता है, ठीक है। फिर जैसे आइडल, आइडल, आइडल ये होता है। बाय द वे, आईडी वाई डबल एल, आईडी एल ई, आईडी ओ एल एंड आईडी ई ए एल, ये सारे ही वर्ड्स अलग हैं। जैसे FYI, एंड आई एम होपिंग दैट यू नो द मीनिंग्स ऑल्सो। फर्स्ट वन का मीनिंग होता है हैप्पी, सेकेंड वन का मीनिंग होता है खाली इंसान जो बहुत ही फ्री है, थर्ड वन का मीनिंग होता है कोई मूर्ति, एंड फोर्थ इज द आइडियल, आई मीन ही इज माय आइडियल। ओके, और आइडियल मीन्स अ वेरी परफेक्ट पर्सन। आइडियल पिक्चर मेरे दिमाग में ये है चीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल। ठीक है, तो हाँ, अपोजिट, अपोजिट मतलब APP, अपोजिट का मतलब होता है वेरी परफेक्ट, उस सिचुएशन में एकदम फिट बैठने वाला, एकदम एप्ट बैठने वाला, उसको हम बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट में से आप एप्ट करके चलो, ठीक है, या ऐप लेके चलो। ठीक है, तो ऐप परफेक्ट होती है, जो सारी हमारे पास फोन में ऐप्स है वो परफेक्ट है, सामान के चलो। ठीक है, तो ऐप परफेक्ट है, तो ऐसे अपोजिट का मतलब होता है परफेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका, अगेन सूट, सूट करदा, विच मीन्स इट्स परफेक्टली सूटिंग यू, सो दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग। ओके, सो या, so you can actually sing a song like this, opposite, opposite karda, which means this suits you. Yeah, ठीक है, चलिए। कंजेक्चर, कंजेक्चर को समझना है अच्छे से। कंजेक्चर काफी बार यूज हुआ है, इवन कैट में भी यूज हुआ है, नोमेट में काफी बार ये यूज हो चुका है वर्ड। कंजेक्चर का मतलब है एक ओपिनियन बना लेना, किसी भी चीज के बारे में एक प्रिजम्पशन बना लेना। ठीक है, तो ये वाला सॉन्ग याद करो, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब तू हंस दिया, है ना, लग दी पंजाब दिया जिस हिसाब तू चल दिया, वट एवर द लिरिक्स आर। तो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दैट ये लाहौर से होगी क्योंकि इस हिसाब से चल रही है, या ये पंजाब से होगी क्योंकि इस हिसाब से बोल रही है। तो ये हमने क्या किया, वी मेड एन ओपिनियन, वी मेड what do you say, a presumption about whatever she would be like, है ना, तो उसको बोलते हैं कंजेक्चर, है ना। तो किसी के लिए कोई प्री सपोजिशन या गेस कर लेना, उसको हम बोलते हैं कंजेक्चर। ठीक है, बड़ी बढ़िया है, चलिए, परफेक्ट। यस, देन यू हैव प्रोस्क्राइब। अगेन इसको कंफ्यूज नहीं करना प्रिस्क्राइब से, ठीक है, प्रिस्क्राइब से कंफ्यूज नहीं करना। प्रीस्क्राइब, स्क्राइब मतलब राइट या राइटिंग, और प्री मतलब ऑन लिखा हुआ, तो प्रिस्क्राइब मतलब किसी कोई हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है ना डॉक्टर, तो उसको हम प्रिस्क्राइब बोलते हैं। लेकिन प्रोस्क्राइब मतलब फॉरबिडन, अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोटो है इश्क दी गले विच नो एंट्री, विच मीन्स यू आर नॉट अलाउड, यू आर फोरबिडन। ठीक है, तो फोरबिड विच मीन्स प्रोस्क्राइब, है ना। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। फाइन, डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोटिडियन। कोटिडियन मतलब रोज बरोज एक चीज करना, एक ही चीज डेली करना। तो मेरा डेली रूटीन जो है, या मेरा डेली चीज है जो मैं रोज करते रहते, ब्रशिंग, आई हैव अ कोटिडियन जॉब यार, आई ब्रश, आई गो टू वर्क, देन आई कम बैक एंड स्लीप, इट इज वेरी कोटिडियन। कोटिडियन मतलब बहुत ही मंडेन है, मतलब बहुत ही रेगुलर है, बहुत ही ऑर्डिनरी है, तो इसको हम बोलेंगे। अब इसका मैंने क्यों ये वाला कोट रखा है, दिस माई एवरीडे वर्क, नो, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ठीक है। सो इस तरीके से याद रखो कोटिडियन, है ना। So this is how you relate things, and this is how you actually get into learning more vocabulary words. ठीक है, I'll definitely try to cover a part 2. So if you've liked this, if you've liked the references, if you've liked the jokes, if you liked the memes, if you liked the pictures, anything, just put everything in the comment box so that I can actually, get ahead and come with a part 2 for this. ठीक है, and I'll definitely come with better memes. ठीक है, and that too I'll try to summarize all the 2023 memes that have come up. That's a guarantee if you hit all the likes and if you subscribe and if you actually put some comments in the chat box also. ठीक है, so now we have, yes, next is mercenary. इसको सीधा सीधा कनेक्ट करो ना मनी से, है ना, मर्सिनरी मनी। ठीक है, मतलब जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए कंसर्न है, जिसको और कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट पर्सन इज कॉल्ड मर्सिनरी। ओके, दैट इज कॉल्ड मर्सिनरी। ठीक है, एंड उसका एडजेक्टिव फॉर्म इज डिफरेंट, दिस इज अ नाउन फॉर्म ऑफ दैट। तो ये मूवी तो वैसे भी दे दनादन फेमस ही थी, इसी वजह से बेचारे पैसे के पीछे ही भाग रहे थे पूरी मूवी में, एंड इवन पूरा सॉन्ग है इस पे, तो पैसा पैसा कर दिए, पैसे भी मर दिए, है ना। सो दैट इज मर्सिनरी, रिलेटेड टू मनी, अ पर्सन हु ओनली इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी इवन विदाउट केयरिंग फॉर एथिक्स। सो वो जो लास्ट का उन्होंने सेटिंग करा था मूवी में, दैट वाज नॉट केयरिंग फॉर एथिक्स बट फॉर मनी, सो दैट्स हाउ ही कनेक्टेड द वर्ड। ओके,
चलिए, लेट्स मूव अहेड। नाउ यू हैव वेरी गुड वर्ड। आई मीन ये सीजन शुरू होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है, ये सीजन बहुत जल्द आने वाला है, जस्ट इन अ मंथ और सो। SQ, ठीक है, इसको किस तरीके से याद रखोगे ना, स्क्रू यू। SQ, स्क्रू यू मतलब जाने दे, नहीं अवॉइड कर रहे हो मैं, ठीक है। सो स्क्रू यू मीन्स लेट इट गो, यू नो, ऐसे। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली अवॉइडिंग समवन, किसी को बार बार अवॉइड करना, डेलिबरेटली अवॉइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, SQ। SQ मीन्स स्क्रू यू, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, विल गेट अहेड विद दिस, ठीक है। यस, पॉन्ड्री। पॉन्ड्री मतलब अगेन स्टेट ऑफ डिफिकल्टी, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी मतलब अगेन कंफ्यूज्ड, कि भाई क्या करें हम, है ना। तो दैट्स वाई, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। सो दैट्स अगेन अ वेरी फेमस सॉन्ग। सो इसके ऊपर से आप याद रख सकते हो क्वांड्री। क्वांड्री मीन्स समथिंग विच इज वेरी you know confusing, very puzzling, and all of that. So I want all of you to do one good homework today. Whenever you go home, फिर ठीक है, what will you do? I would expect you to do something for me. ये जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं आज, ठीक है, ट्राई कि तुम उसको सिर्फ प्लेन पेपर पे लिखो, एंड ट्राई कि तुम उसको क्या खुद ब खुद याद कर सकते हो, या खुद ब खुद उसका आंसर लिख सकते हो कि नहीं। अगर उसको तुमने रिमोट एक मीनिंग तक लिख लिया ना, तो भी तुम यू आर डन, ठीक है, क्योंकि दिन इन दीज 40 मेन वर्ड्स वी हैव डन 100, सॉरी वी हैव डन 200 odd वर्ड्स, क्योंकि एवरी वर्ड हैज एटलीस्ट 4 to 5 वर्ड्स which have accompanied them in terms of synonyms, antonyms, or in terms of extra words also. So if you count, you've actually done 200 words. I mean, not touching them per se, but touching them out of the main scope of it. ठीक है, so that's again enough for today, है ना। I'm very sure that you might have learned a lot of things from this, and if you want, definitely are interested in the second part, please put it in the comment box. Also give me more relatable memes of the words that I have used. Quandary का अगर आपके पास कोई relatable meme है, अगर आपके पास SQ का कोई relatable meme है, definitely put it in the comment box. I would love to read all of that. ठीक है, and with this I finish. You can definitely get in touch with me on the email ID given to you, and that's about it. Okay, and thank you so much for joining. See you all, and best of luck for NMAT and SNAP. ZAT के लिए तो वापस मिलेंगे, ठीक है। See you all. Thank you.